اور میری دیوان میری دیوان ویسے میں ریس کو اس کی مدد کرنے لگا اور میں اس کی مدد کرنے لگا اور اس کے خیال آتے ہی اس نے ایسا جاجن روک دیا، اگر ضرورت تمہیں وہ بریسلٹ نے پسند ہے تو مجھے ایسے ہی بول دو، میں آرڈر پر دوسرا بنوا دوں گی تمہارے لیے، مگر یہ نہیں پلیز، یہ میرے بھائی نے دیا ہے، یہ اس کی آخری نشانی ہے میرے پاس، میں جانتی ہوں تم ابھی بھی ہر اس بھائی کے لیے فیلنگس رکھتی ہو، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ابھی حیات سب کے سامنے روندی آواز میں بول رہی تھی کہ ریس کی باری رفتار آواز حال کمرے میں گونجی، پرس مجھے تو غیر نے اس سنگ دل کی بات سنتے ہی پرس اپنی پکڑ ڈھیلی کر دی اور اپنے نیچے گرا دیا، جیسے فوراً ہی ہاتھ میں اٹھا کر ریس کے آگے کیا، وہ چاہتے تھے ایک بار وہ بولتا کہ اس کی بیوی چور نہیں ہے، اور پھر کسی کی مجال نہ تھی کہ کہنے کی، مگر اس پر جائی نے نہ کہا، الٹا سب کے سامنے اس کی تلاشی دلوانے لگا۔ ایک بیوی ہونے کے ناطے اس سے زیادہ تزلزل کے آگے کسی عورت کی، اس کے اپنا شوہر کسی غیر عورت کے کہنے پر آ کر اس کے پرس کی تلاشی دلوا رہا ہے۔ جی جی پلیز مسٹر اریز، مجھے میرے براسلیٹ جو ہیں یاد کی آنکھوں میں یہ جملہ ادا کرتے وقت چمک ابھری تھی، ڈیولیشن چمک مکمل ہے، اس کے ہاتھوں سے پریس ہوئی اور سب کے سامنے اسے گنگالنا شروع کیا، اس میں سارا سامان نیچے گرنے لگا، زویا کے نزدیک وہ سامان نہیں تھا جو بکھر رہا تھا نیچے زمین پر، وہ اس سے نفسی جو کانچ کی کرچیوں کی طرح بکھرتی جا رہی تھی۔ لاسٹ والی میں چیک کیا، مجھے یقین نہیں، اس میں یا پینک ہونے والی لگی، پھر دیکھے کہ زویا کا پرس خالی ہو چکا تھا، مگر بریسلیٹ نہیں برآمد ہوا، جبکہ اس نے اپنے ہاتھوں سے بریسلیٹ اس کے پرس میں ڈالا تھا۔ تم تو اتنے یقین سے کہہ رہی ہو جیسے تم خود نے ڈالا ہے، اس میں بنانے اس کی طرح کا بغیر رہ نہ سکا۔ اس کی بات سنتے ہی آنکھ بکھلا گئی، مگر اس کا آخری شک بھی دور کرنے کے لیے ریس نے سب کے سامنے زپ کھولی، لاسٹ والی، اور اس میں ہاتھ ڈالا۔ حیات کی آنکھوں پر امید تھی کہ اب اس کے ہاتھوں سے بریسلیٹ نکلے گا اور بدلے میں وہ صرف زویا کو سب کے سامنے ذلیل کر سکے گی، بلکہ اریز کو بھی اس سے بدزن کر دے گی۔ کچھ نہیں ہے اس میں، بس اریز کا کہنا تھا کہ حیات کے چہرے کے رنگ اڑے، پھل کیے کہتے ہی اریز فوراً نیچے بیٹھ گیا تھا۔ حال میں موجود ہر شخص کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کو ہی، جب ریز ملک خود نیچے بیٹھ کر وہ سارا سامان جو فرش پر بکھرا پڑا تھا سن کر اپنی بیوی کے پرس میں ڈالنے لگا، جہاں ہم بے یقینی کے عالم میں کھڑے تھے، وہاں زویا کڑ کر اٹھاتے حیات کے آگے آ کر کھڑی ہوئی، زویا کی سرمئی آنکھوں سے آگ نکل رہی تھی۔ عدنان بھی فوراً نیچے بیٹھا اور ریز کی سامان سمیٹنے میں مدد کرنے لگا، مانا زویا کو بہت غصہ تھا ریز پر، مگر اس لمحے وہ غصے میں اپنا خراب کر لیے، ریز کے کھڑے ہوتے ہی وہ اس کے پاس آ گئی۔ ریز، تم نے دیکھ لیا نا کیسے یہ سب مجھے مل کر ذلیل کر رہے ہیں، تمہاری بیوی کو دیکھو کتنی آسانی سے مجھے چور قرار دے دیا ان لوگوں نے، جبکہ میرے پاس بریسلیٹ نہیں تھا، اور میں بار بار بتا رہی تھی آج تمہارے ہوتے ہوئے تمہاری بیوی کی کوئی عزت نہیں کر رہا، تو خود سوچو تمہارے پیچھے میرا کیا ہوگا، میں تمہاری بیوی ہوں، ریز تمہاری عزت تمہیں نہیں لگتا تمہیں میرے لیے اسٹینڈ لینے کی ضرورت ہے، اس کا بڑا و سخت ہاتھ سب کے سامنے اپنے دونوں نرم و چھوٹے ہاتھوں میں لے کر وہ بالکل اس طرح شکایت کر رہی تھی جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے کرتا ہے۔ کیا سزا دینا چاہتی ہو تم؟ مقبل نے فقط اتنا سوال کیا۔ میں چاہتی ہوں سب مجھ سے معافی مانگے۔ اس حال میں موجود ہر ایک شخص زویا کی بات سن سبھی یکا بکا ہوئے تھے کہ ریز بھی وہ ہر ایک شخص سے چاہتی تھی کہ وہ اس سے معافی مانگے۔ اب اس نے دوبارہ تصدیق چاہی۔ ہاں سب، کیونکہ یہ سب شامل ہے مجھے ذلیل کرنے میں، یہ سب انتظار کر رہے تھے کب میرے پرس سے بریسلیٹ نکلے اور کب مجھے مکمل طور پر ذلیل کر سکے اور میرا مذاق اڑا سکے۔ ٹھیک ہے، اگر میری بیوی یہی چاہتی ہے تو یہی صحیح ہے، اور فکر سے ریز کے لہنگے کہتے ہوئے کا عالم چھا گیا۔ سب جانتے تھے کہ ریز کی پاور کو کس میں ہمت تھی کہ اس کے خلاف جا سکے۔ برازیل میں رہتے ہوئے ریز ملک کے خلاف جانا یقین موت کو دعوت دینی تھی۔ ہر شخص خود آگے آ کے اب زویا سے معافی مانگ رہا تھا، جن میں حیات میں شامل تھی۔
तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरा घर वापसी के दौरान वो खामोशी से बैठकर खिड़की से बाहर जाने देख रही थी जब मुकब्बिल ने इसकी कान के लोग के पास मुंह लाकर हंसती की सरगोशी की शुक्रिया मेरे साथ देने के लिए। आखिर में वो हसीन लड़की अब इसके नौजवान की जान मुकम्मल तवज्जो होकर नरमी से शुक्रिया अदा कर रही थी। बस और कुछ नहीं कहूँगी। और क्या उलझी जिसमें मुकब्बिल ने अपनी पॉकेट में से हाथ डालकर एक चीज निकालकर इसके सामने की और उस चमकती हुई चीज देखकर जोया की आंखें हैरत से भर गई। तुम्हें वाकई लगा था ये तुम्हारे पास में नहीं है? वह उसका बकरा एक्सप्रेस को देखकर तो इसने मेरे ऐसी मदद कर रहा था ना कि चेकिंग यकीन करो अरेज मुझे नहीं पता ये मेरे पास कैसे है। जोया पिंक हुई थी। ये कोई आम ब्रेसलेट नहीं थी। बकौल हैरत का हयात के यार इसकी ब्रेसलेट यानी रेस की जाने दिखने की वो समझ सकती थी कि इस ब्रेसलेट किस तरह खतरनाक हो मैनी को फेस कर सकता है रेस को। मगर मुकब्बिल फिर कुछ ना कहो वो दूसरी जाने रुक कर गया। बोला क्यों ये शेयर करता कि जोया ने इसे ब्रेसलेट को चुराया जबकि वो हद अच्छे से जानता था कि जोया को हारिस याद नहीं है। लोग अभी भी यही समझ रहे हैं था कि जोया नाटक करेगा। याद रख जाने का यही वजह थी कि हयात ने ये गेम खेला मगर रेस को भी वाकिफ रखता था कि जोया को कुछ भी याद नहीं। घर आने के बाद रेस आदत के मुताबिक फ्रेश होने चला दिया जबकि जोया इन्हीं कपड़ों में आराम से सोफे पर बैठ गई थी। रेस नहा कर निकला तो इसके लोअर पार्ट पर टॉवल बंधी हुई थी। दूसरी टॉवल से वो बालों सुखाता हुआ ड्रेसिंग टेबल की जाने बढ़ा। वो अभी बाल सुखा ही रहा था कि अचानक मन में रही जब इसने नरम और गर्म नफस से खुद को पीछे से पेट की कमर पर जकड़ा उठता हुआ पाया। जोया के हाथ इसके पेट पर बंधे थे। अब इसने बिना ज़हन चेहरा इसकी वजह मर्ज की कमर से लगा दिया था। क्या मुकब्बिल ने कोई हरकत ना की जैसे सांस रोके खड़ा हुआ। मैं तैयार हूँ जिंदगी से भरी सुरख होते हुए चेहरे के साथ साथ देने लगी। आज पार्टी में जो कुछ हो पर एक बात तो इसे अच्छे से समझ आ गई थी कि अगर वो रेस को अपना आप ना पेश करेगी तो अपने रिश्ते को मजबूत नहीं बनाएगी। तो बहुत सी लड़कियां मौजूद है रेस का दिल लभाने के लिए अपनी जान राग़िब करने के लिए। वो अपना साहिबान थाम कर रखना चाहती थी इसलिए हिम्मत कर रही थी। इससे आगे बढ़ने की वजह से भी कौन सा मर्द ऐसी औरत के साथ रहना चाहेगा जिसकी जिस्मानी जरूरत भी ना पूरी कर सके। और बस इसके जुमले के कानों में पड़ने तक अगले ही लम्हे रेस ने इसके हाथों के इशारे से खुद को आजाद कर इसे बेड पर लेकर अपने साथ गया। बर्फ की फुर्ती और अचानक कमरे पर जोया का ऊपर का सांस ऊपर नीचे का नीचे रह गया था और सांस रोके रेस के खूबसूरत चेहरे को तकने लगी थी। दावत इसने खुद दी थी मगर पता नहीं क्यों कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। ना जाने कितनी बार वो खुद को समझा चुकी थी मुकब्बिल श्योर है इसका हक है इसका। मगर अचानक इसके करीब आते ही बॉडी लैंग्वेज खुद ही बदल गई। जैसे झुका जोया फौरन अपना मुंह फेर गई और रेस पास बेड के सफेद पर चादर पर लैंड हुई। मुकब्बिल ने आंखें जोर से मीची यकीनन ढेरों गुस्सा अपने अंदर जब्त किया था इस नौजवान ने। सॉरी अब नहीं होगा तुम करो मैं तैयार हूँ। जोया फौरन ही घबरा कर गोया हुई। साथ ही इसने बेड की चादर को अपने दोनों हाथों की मुठ्ठियों में मजबूती से बांध लिया। जोया हम मियाँ बीवी और खांसी जताते हुए बोल रहा था जैसे इसे याद दिला रहा हो कि गलत नहीं कर रहे वो दोनों। इसकी ग्रे आंखें जोया को खपा होती महसूस हुई। किसी भी मर्द की हुई अगर कोई औरत उसे खुद के सामने सजावट दे और फिर पीछे हट जाए यकीनन ऐसे ही महसूस करेगा जैसे उसके अरमान के साथ खेल रही हो वो औरत। वो भी दस्ता तौर पर जोया ने हल्की सी आंखें बंद की और खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करने लगी। खबर फिर इस पर झुका मगर जोया की बॉडी फिर रिएक्ट कर गई। फिर इसके होंठ सफेद चादर से मिक्स हुए और जिस तरह खुद को खड़े हुए थी कोई भी देख के बता सकता वो खुद को फोर्स कर रही है इस मामले में दिल नहीं है इसका। दूसरी बार इसकी जानवर से रिएक्शन पर रेस फौरन सीधा होकर खड़ा हो गया। जब दिल ही नहीं है तो फोर्स क्यों कर रही हो खुद को? ऐसी बात नहीं है। वो फौरन उठकर परेशान होते हुए बोली जो मैं कोई जानवर नहीं हूँ जो अपनी बीवी के साथ जबरदस्ती करो। जब तुम्हारा दिल हो तब आना। अब आखिरी जुमला इसने जियत कसते हुए जब अदा किया तो जोया महसूस कर सकती थी जब ढेरों गुस्सा अपने अंदर जब्त कर रहा है। वो परेशान हो गई बहुत। जोया सामने खड़ा नौजवान इसके तीन चेहरे पर छाई परेशानी भी बहुत बढ़ रहा था और इसके लम्हे इस लड़की का शदीद परेशान होता चेहरा देख इसके गुस्से भरे सांप आस्ता आस्ता ढीले पड़ने लगे। मुलाजक से जान रोने के दर पड़ती उसकी नजर झुकी हुई थी। मुकब्बिल के कुछ लम्हों पर सी हुई भूगोल तक रहा था। फिर आस्ते से इसकी ठोड़ी पकड़कर इसका पूरा रौनक वजह वजह चेहरा ऊंचा किया और खुद भी नहीं जानती हुई शायद इसकी कितनी हसीन लग रही थी। इसरार के नीले रंग की मैक्सी में क़यामत से क़यामत थी। वो बस इस नादान को ही खुद ना खबर ना थी क्या हुआ खासा अनजान लहजे में इस्तफसार किया। अब तुम मुझसे फिर नाराज हो जाओगे। हाय कुर्बान जाने का दिल क्या इसकी साथी पर जो चोट भी दे रही थी मगर साथ मलम अकेले में अदनान की वालदा ने माना बात जोया से की थी मगर जल्द आंखों में वो रेस से ले रही थी। मैं भी आती हूँ जोया अदनान की वालदा
साहिमा चौधरी की अंकों का ताक़ुब नहीं करवाई थी, इसलिए इसने नहीं देखा था कि पहले उन्होंने अरेज से डायरेक्टली इसे बात करने के लिए भेजा में, जिसके जवाब में विजया मर्द ने लापरवाही का इजहार जोया मुस्कुराते हुए इनके साथ चल दी थी। साहिमा चौधरी अपने बेटे के वादे से लेकर जोया को बहुत नापसंद करती थी, जबकि वह इन्हें घर में पली बड़ी थी। इन्होंने बेटे के साथ खेलते हुए ऐसा नहीं कि ये नापसंद की शुरू से थी। वो जोया को जब तक वो अमीर थी बहुत पसंद किया करती थी, और इन्होंने कहा भी था कि उद्यान की जोया बने जहाँ जोया के पूरे ब्राजील से अच्छे खानदान के रिश्ते आए थे। इनमें से एक रिश्ता अदनान का भी था, लेकिन जैसे इसका खानदान बैंक करप्ट हुआ, इसके बाद इन्हें जोया जहर लगने लगी। जब से इन्होंने सुना था कि जोया की याददाश्त चली गई, वो तब से ही इससे मिलना चाह रही थी। वो चाहती थी कि जोया अरेज के साथ ही कुछ वक्त उनकी गुजारती रहे, ताकि इनका बेटा अदनान महफूज रह सके, क्योंकि अगर तलाक वाली खबर सच्ची निकले तो जोया ने इनके गले पड़ना था। आखिर में आकर चौंका अदनान तो अच्छा छोड़ने वाला नहीं। इस बार इनके लिए कहने पर वो पिछली बार अब तो पछता रहा था कि वो किसी भी लड़की से शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। इस इंतजार में कि रेल जोया को तलाक देगा, कैसी हो बेटा, इन्होंने नहायत ही मोहब्बत भरे लहजे में पूछा, जबकि जोया इनका झलक सुन चुकी थी। रेल से इसके लिए जानती थी कि यह सफेद है, कोई मोहब्बत करने वाली खतून नहीं है, नहायत ही लालची और स्टेटस पर मरने वाली औरत है। ठीक हो आंटी, कुछ देर रस्मी बातचीत के बाद सुना है तुम्हारी याददाश्त चली गई है, क्या तुम्हें वाकया कुछ भी याद नहीं? नहीं, मगर जानना ज़रूर चाहती हूँ। वाक़ई अपना माज़ी जानने में बहुत तजस्सुस रखती थी। मैं तो बचपन से अदनान की दोस्त रही, तो फिर आपने तो देखा होगा मेरे घरवालों को, मेरी कज़िन को, मेरे सब रिश्तेदारों को और मेरे मंगेतर को। तुम्हारे वालिदैन का तो तभी इंतकाल हो गया था जब तुम छोटी थी। तुम्हारे 4 दोस्तों का ग्रुप था, अदनान, तुम और बाकी 2 और थे। अब तो वो दोनों ही बाहर मुल्क में रह रहे हैं। तुम्हारी फैमिली के बैंक करप्ट होने के बाद सब कुछ बदल गया था। ज़ोया तुम्हारी कज़न मुक़द्दस में छोड़कर चली गई थी। सुना था कि हारिस तुम्हारी कज़न मुक़द्दस को पसंद करता था, वो इससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन तुम बीच में आ गई। तुमने ही इसे फ़ोर्स किया था वो तुमसे शादी करे, लेकिन ये सुनाई बात है। असल में क्या हुआ था ये तुम जानती हो, मुक़द्दस जानती है। हारिस मुस्कुराते हुए बोले। तो ज़ोया सोच में पड़ी, आखिर वो किसकी मोहब्बत के बीच में आई थी, कैसे किरदार की मालिक थी वो। जहाँ तक मुझे याद है, तुम और हारिस बहुत खूबसूरत कपल थे, बहुत अच्छे लगते थे एक साथ और काफ़ी खुश भी दिखाई देते थे, इसलिए मुझे तो नहीं लगता ये अफ़वाह सच्ची है। जब मुक़द्दस और मेरे शौहर रेज़ के दरमियान कुछ था, वो अक्सर नोट किया करती थी कि रेज़ इसके किसी को तलाश करता, मगर वो तहरीन को तलाश करता, इसे कभी कोई आंसर नहीं लगा। वो कोई और हो जो शायद इसमें उलझी हो, लेकिन वो कौन हो सकती है? वो हमेशा यही सोचा करती थी, और आज पता नहीं क्यों इसके दिल में ये ख्याल आया कि कहीं वो मुक़द्दस तो नहीं। आखिर वो इसकी कज़िन है, और कज़िनों के चेहरे और आदतें अक्सर मिला करती हैं। जवाब में साहिमा चौधरी खामोश हो गई। इसने देखा वो काफ़ी लम्हा तक कुछ सोती रही, नहीं तो फिर इन्होंने थोड़ी देर के वक़्फ़े के बाद मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसका जवाब सुन जोया के दिल को तसल्ली मिली थी कि चलो शुक्र है, ऐसा कोई मामला नहीं। मुक़द्दस और आज कहाँ है? इसके वक़्त डॉक्टर ने कहा था इससे कि उन लोगों से मिले जो इसका माज़ी जानते हैं, ताकि उसके माज़ी की झलक याद दिलाएं। यही वजह थी कि मुक़द्दस आज को ढूंढना चाहती थी, इनसे मिलकर बात करना चाहती थी। मुक़द्दस तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, काफ़ी वक्त से वो ब्राज़ील नहीं आई, और हारिस तो इसके मतलब तो कोई भी नहीं जानता कि वो कहाँ है और कैसा है वो। इतने कहने के बाद वो थोड़ा सा इसके करीब आई, जिससे जोया को महसूस हुआ कि कोई राज़दार बात इसे बताना चाहती थी। हारिस और तुम्हारा शौहर अरेज एक दूसरे की शुरू से जाने दुश्मन है। हारिस ने अरेज की फैमिली को धोखा दिया था, बिजनेस में इतना बड़ा धोखा कि वो लोग रोड पर आ गए थे। फिर एक रात अरेज के वालिदैन इससे बात करने गए, लेकिन वापसी में इनका एक्सीडेंट हो गया था। लोग कहते हैं वो एक्सीडेंट हारिस ने ही करवाया था, जिसमें अरेज के वालिदैन का इंतकाल हो गया था। अपने वालिदैन के इंतकाल की खबर पर अरेज बाहर मुल्क से वापस आया। वो लड़का इतना ज़हीनी और होशियार था कि कुछ ही वक्त में इसने पूरा बिजनेस वर्ल्ड अपने नीचे जमा लिया, और देखते ही देखते इसने हारिस को तबाह व बर्बाद कर दिया। आखिर में सुना था ये हाल था हारिस का कि वो चुभता फिर रहा था रेस से, और इसके बंदों से ये कहकर इसे मारना दे। इसका मतलब रेस के नज़दीक इसके जानी दुश्मन हारिस की मुकेटर थी, और हारिस जिसने इसके वालिदैन को कत्ल किया, तभी इसके दादा मुझसे इतनी नफरत करते हैं। जोया धीरे लब परेशानी के हालत में बढ़ रहा है। क्या हारिस से रब्ता किया कोई जरिया है? वो सीढ़ी से उतर रही थी, मगर ज़हन में अभी तक साइमा के बेगम जवाब में ही उलझा हुआ था। हारिस को तलाश करने की कोशिश मत करो ज़रा, वो माजी है, इससे भूल जाओ। तुम्हें शायद अभी अंदाज़ा नहीं अरेज मलिक की खबर का, अगर तुम नेट पर भी सर्च करोगी ना हारिस की झलक, तो अभी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ज़्यादातर लोगों का मानना यही है कि वो मर चुका है, जबकि कुछ कहते हैं कि वो छुपा हुआ है। अभी वो अपनी सोचों में मगन थी कि सामने से किसी से टक्कर हुई, और इस लड़की का पर्स जोया का पर्स एक साथ नीचे गिरे। जोया ने फौरन इसका पर्स उठाकर इसके हाथों में दिया, साथ माजूस भी की, लेकिन जब इस एक्टर ने जोया का पर्स उठाया तो बजाय शुक्रिया ये माजूस की इससे घुटती पर्स हाथ में थाम कर वहाँ से चली गई। कितनी रोड पे में पर्सनैलिटी है इस लड़की की, और फिल्मों में कितने अच्छे रोल करती है।
ज़ोया نے मुँह बसूरते हुए कहा और आगे बढ़ी। वो लड़की एक एक्टर है, इसके अलावा ज़ोया इसके मतलब कुछ भी नहीं जानती थी। ज़ोया की नज़रें पूरे हॉल कमरे में अपने शो अरेज को तलाश कर रही थी। जब वो लड़की दोबारा इसके पास आई, इस बार बहुत गुस्से में दिखाई दे रही थी। तुम चोर कहीं की, तुमने मेरा ब्रेसलेट चुरा लिया। ज़ोया के रूबरू आकर चीखी तो सब इसकी जाने मुतवज्जो हुए। कौन सा ब्रेसलेट? ज़ोया फौरन उलझकर पूछी उठी। इसने तो कोई ब्रेसलेट नहीं देखा था। मेरा ब्रेसलेट वो ग्रीन कलर के नगों वाला, मुझे अच्छे से पता है। ज़ोया वो तुम्हारे ही पास है, तुमने ही चुराया। इसलिए याद इतनी जोर-जोर से चीखकर बोल रही थी कि कोई बहरा भी सुन ले। यकीनन वो दास्तां तौर पर लोगों की तवज्जो मुबज़्ज़र कर रही थी और खामखा का तमाशा लगा रही थी ताकि ज़ोया को ज़लील कर सके। डियर, तुम्हें ज़रूर कोई गलतफ़हमी हो गई होगी। ज़ोया क्यों तुम्हारा ब्रेसलेट लेने लगी? अच्छे से ढूंढो, यहीं कहीं होगा। टोंका पार्टी सामा चौधरी की थी, इसलिए वो फौरन ही आगे आकर इन दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिश करने लगी। मुझे अच्छे से पता है आंटी, इसने चुराया है मेरा ब्रेसलेट। इसकी शुरू से ही नजरें थी इस पर। भाई ने जो दिया था मुझे याद की कहते अब लोग जोया को ऐसे तकने लगे थे जैसे वाकई इसने चुराया हो। देख के जोया बेचारी समझने से काफी थी कि आखिर वो इस लड़के का भाई का दिया हुआ ब्रेसलेट क्यों चुराने लगी। देखिए मिस, अब खाम का मुझ पर इल्जाम लगाई है वो बेबुनियाद बगैर किसी सबूत के। जोया खासा एम्बेरस फील कर रही थी। लोगों की नजरों से भरी महफिल में से चोर कहा जा रहा था, वो भी एक मामूली से ब्रेसलेट के लिए। जोया ड्रामा बंद करो सब। जानते तो मेरे भाई के पीछे कितनी पागल थी और तुम्हें हर वो चीज़ चाहिए होती थी जो मुझे पसंद थी, लेकिन वो मेरे भाई का दिया हुआ आखिरी तोहफा है, वो मेरे लिए बहुत खास है। वो मतलब मुझसे याद अपनी आंखों में मगरमच्छ के आंसू भर लाई थी। अरेज और जोया के तलाक की खबर इतनी आम थी कि कोई भी जोया को अरेज की बीवी की हैसियत से नहीं देख रहा था। पार्टी में यही वजह थी कि याद के लिए बहुत आसान था तमाशा क्रिएट करना और इसे सबके सामने जलील करना। वो बड़ी महफिल में से चोर बना चुकी थी। याद जोया की शादी हो चुकी थी, वो अरेज मलिक के साथ बहुत खुश हैं। इसे ज़रूरत नहीं है हमारे भाई की चीज़ों की, इसलिए प्लीज़। वो अदनान था जो उसके लिए लड़ने आगे आया। अपने लफ्ज़ माना। इससे भी बहुत खोखले लग रहे थे, लेकिन लोगों के सामने भरम रखने के लिए सिर्फ तो ये कहना ही था। दुनिया जानती थी इस लालची औरत का लालच कभी खत्म नहीं होगा। पहले इसने मेरे भाई को तबाह किया, अब रेस को तबाह करने चल पड़े। ये तो ही मनुष्य की सदा पैदा होते ही माँ बाप आगे मेरे भाई से मंगनी हुई तो वो बेचारा तबाह हो गया। अभी अपने हौसले से अरेज मलिक को भी तबाह कर देगी। हयात की बातें सुना जोया को कुछ कुछ समझ आने लगा था। वो हयात थी आरस की छोटी बहन, और जिस तरह वो सीन क्रिएट कर रही थी जोया अंदाजा लगा सकती थी कि इसके कर्म जिसके साथ अच्छे नहीं थे। माजी में थोड़ी देर पहले तो सारा सीन आप सिर्फ अपने भाई के लिए, अपने रेस्टोरेंट के लिए क्रिएट कर रही थी, और अब अचानक को आपको मेरे साथ हमदर्दी होने लगी। और नौ कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना लगा रही हैं। आप तो फिलहाल मोहतरमा, मेरे पास आपका फैसला नहीं है। नौ प्लीज एक्सक्यूज मी। जोया ने एक एक लफ्ज़ दबाकर जितराते हुए अदा किया। फिर नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में अपने बालों में उंगलियां डालकर इन्हें पीछे की जान में ले जाती। एक अदा से सीधे कंधे पर डालती वो मुड़कर जाने लगी। जोया, मुझे अच्छे से पता है ब्रेसलेट तुम्हारे पास ही है। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे यकीन अब नहीं, पर इसकी तलाशी देते हुए तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। इसके कहते ही जोया की कदम अपनी जगह मंद हुए और चोर नहीं थी। जब इतने सारे लोगों के सामने तलाशी देकर खुद की शर्मिंदा क्यों करे? इसका खून खौल गया था। मैं कोई तलाशी नहीं देने वाली। जोया गले पहले शेरनी की तरह दाढ़ी थी। तलाशी तो तुम्हें देनी पड़ेगी जोया, वो ब्रेसलेट मेरे भाई का दिया हुआ है, मैं वो तुम्हें नहीं ले जाने दूंगी किसी भी सूरत में। कहते वो खुद की जोर तेजी से चल कर आई और इसके हाथों से पर्स छीन कर इसकी जेब पे तन तेजी से खोलने लगी। जिप तेजी से खोलने लगी। मेरा पर्स वापस दो। जोया फौरन ये एहतजाजी अंदाज में बोली। चिंकी हुई इससे अपना पर्स छीनने की कोशिश करने लगी। इस लड़ाई में सारा सामान पर्स की जिप खोलने होने के समय नीचे गिरने लगा। जोया खासी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। लोगों के सामने यूँ तमाशा बनने की वो देख सकती थी। लोग कैसे इसका मजाक उड़ा रहे हैं, इसकी आरोप पर हंस रहे हैं। पूरी महफिल में एक चोर की नागाह से देखी जा रही थी। क्या हो रहा है? ये अभी लड़ाई जारी थी कि एक रफ दरवाजे पर पूरे हाल में गूंजी। हयात फौरन ही और रेस की जानिब बढ़ी। मिस्टर रेस, देखा जोया ने मेरा ब्रेसलेट चुरा लिया है। कुछ देर पहले ये जानबूझकर मुझसे टकराई थी। इसने मेरे भाई का दिया हुआ ब्रेसलेट चुरा लिया। तभी याद का बस नहीं चल रहा था कि अरेज का हाथ पकड़ कर रोए ताकि इसका दिल अपनी जानों में बदल कर सके। हयात नाश्ता तौर पर अरेज के दिल में ये बात डाल रही थी कि जोया अभी भी हाथ से मरती है। ये झूठ बोल रही है। अरेज, मैंने कोई ब्रेसलेट नहीं चुराया। जोया फौरन ही क्रोध में चिंकी, अगर ऐसा है तो दो तलाशी। हयात दो बोली। जोया ने अरेज की जानिब देखा। कबल की निगाहों में सद मेहरी के सिवा कुछ नहीं था। और इसे याद आया और अरेज की नज़र में कौन है? वो आरिस की मंगेतर है। आरिस की मोहब्बत, जिस शख्स की मोहब्बत जिसने अरेज के माँ बाप का कत्ल किया, जो अरेज का जानी दुश्मन।